students, today we will solve some important questions from NCERT book. In the first chapters, the first two questions of the exercise is given, in which the first question is what is the force between two small charge spheres. हमें find out करना है the force between two small spheres. That is force between two small spheres having charges. पहले पर जो चार्ज दे रखा है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड सेकेंड चार्ज दे रखा है Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट. इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर इज गिवन. Dear students, there are two charges as given, that is the charge Q1 and that is the charge Q2, and if they are placed at the distance R, then by the Coulomb's law the force between them is F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is the Coulomb's law. Now we substitute all these value in the given formula, we get the force between them. तो बच्चों यहाँ पर देखो ये तो कूलम में दिया, इसका यूनिट सही, इसका यूनिट सही, लेकिन ये यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इससे हम क्या करेंगे 30/100 कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर में. बच्चों ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹. Q1 की वैल्यू है क्या 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ एंड R इज व्हाट 30/100 whole square. Now solve this. We get 9 into 2 into 3, 9 into 2 into 3 into what is the power of 10? 9 minus 7 and minus 7. जो 10 के पावर्स हैं वो सब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे बाई ये क्या होगा 30 into 30 बाई 100 into 100. We can divide these two zeros by these two zeros. 100 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 9 into 2 into 3 into 100 into ये हो जाएगा 9 minus 14 by what happen 3 into 3 3 3 जा 9 से कट जाएगा 3 2 जा 6 what happen here that is 6 into देखो 10 का पावर ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 10 का पावर 9 minus 14 -5 और यहाँ से -5 आएगा -5. What happen that is 6 into 10⁻⁻³ Newton is the required force. Now the second question says the electrostatic force on a small spheres. The electrostatic force on a small spheres ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम. एक स्मॉल स्फीयर है जिस पर चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम. ड्यू टू अनदर स्मॉल फेयर्स ऑफ चार्जेस, एक अनदर स्मॉल स्फीयर है जिस पर चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम. इन द एयर इज 0.2 Newton. It means the force between them and then is given here. Q1 is equal to 0.4 microcoulomb, Q2 is equal to minus 0.8 microcoulomb, and the force of between them is equal to 0.2 Newton. Okay, then what is the distance between the two spheres? So according to the question, first we want to find out the distance between these two spheres. तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो ये माइक्रो कूलम में है, तो इसको कूलम में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कूलम बदल जाएगा. ये -0.8 माइक्रो कूलम है तो इसमें भी हमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कूलम में बदल जाएगा. फोर्स इज इन एमकेएस सिस्टम, नो प्रॉब्लम. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बाय द कूलम्स लॉ इज इक्वल टू वंस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. We put here the value of 1/4 pi epsilon naught 9 into 10⁹. The Q1 is 0.4 into 10⁻⁻6 into 0.8. यहाँ निगेटिव साइन
और पॉजिटिव साइन ये बताता है कि देयर आर ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम। साइन ओनली tells us what is the nature of the forces, that forces are attractions or are repulsions. So we don't use here sign 10 to the power minus sign by, we know what is the value of r square, I don't know, so we put here r square and the value of force is equal to 0.2 Newton. So when we solve the value for r, we get r square in the left hand side by cross multiplication, we get 9 into 0.4, 9 into 0.4 into 0.28 into 10 का पावर यहाँ 9 है, यहाँ -6 और यहाँ -6 और ये 0.2 न्यूटन ऊपर आ जाएंगे। ये 0.2 से पॉइंट कट जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, अब देखो ये क्या होगा, ये हो गया 9 इंटू 8 2 जा 16। बच्चों यहाँ 1 पॉइंट आएगा तो इस डेसिमल को हटा देते हैं और उसे 10 के पावर में ले जाकर के क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना रहे हो तो यहाँ और 1 प्लेस डिस्प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पर -1 जुड़ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 16 इंटू, देखो 6 6 12 -1 13, 13 में से 9 चला जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा, देखो 6 6 12 -1 13 13 and 9, that is -4. This is the value of r square. So what is the value of r? The square root of 9 is 3. This is square of 16 is 4 into 10 to the power minus 10 to the power -4 का स्क्वायर रूट होगा क्या, 10 to the power -2। क्यों? Because 10 to the power 4 can be written as 10 to the power 2 -2 into 10 to the power -2 like this। तो 2 के प्लेस पर एक बार लिखेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 12 into 10 to the power -2, this will happen 0.12 meter is the distance between them. Now for their second part B, what is the force on the second sphere? ये कहता what is the force on the second sphere due to the first। बच्चों चूंकि इन दोनों के बीच फोर्स 0.2 न्यूटन का लग रहा है, तो ये स्फीयर इस पर जो फोर्स लगाएगा, मान लो ये स्फीयर का नाम हमने ए रख दिया, इस स्फीयर का नाम बी रख दिया। अब देखो दोनों का नेचर क्या है, इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है। देन वी गेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर हम देख रहे हैं तो ए ने बी पर लगाया फोर्स, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए रिप्रेजेंटेड बाई एफ बी ए एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी रिप्रेजेंटेड बाई एफ ए बी। इस चार्ज के इस स्फीयर्स के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ई रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ बी ए, वो इसकी तरफ लगेगा, और इस स्फीयर के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ ए बी से, और ये एक दूसरे का क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अगर 0.2 न्यूटन का फोर्स इसने इस पर लगाया तो इसने भी 0.2 न्यूटन का फोर्स इसने इस पर लगाया। इट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ इज 0.2 न्यूटन। इट मींस द फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर on 2 is also on of r of 0.2 Newton and force on A due to B is also r of 0.2 Newton.